Hello my dear students, good morning to all. Now today we will study new lesson number 5th. Fourth lesson yesterday only we have completed. Now lesson 5th, factors and multiples. Factors and multiples given here. For this lesson we need multiplication table. For finding factors of the given number also we need multiplication table, as well as while studying multiples here also we need multiplication. So at least 20 you have to buy that multiplication table. Okay. Now at first we will study factors. After completing factors we will study multiples. So which things we have to study in this lesson? Understanding factors. First point is understanding factor we have to study. After that finding out factor. If numbers are given, how to find the factor of the given number, that we have to study. More about numbers also. Factor tree. After that, and after studying factor we have to study multiples. And in multiples, even and odd numbers are also given. All these things we have to study one by one. Now first of all, understanding factors. Now Carl. Carl means the name of one boy had. Boy. The name of boy. Carl had 20 apples. He arranged them in different way in his shop. यानी उसके पास 20 एप्पल. एप्पल मतलब सेब. कोई भी यहाँ तुम चीज ले सकते हैं. एप्पल, मैंगो, बनाना, जो चाहिए वो ले सकते हैं. 20 एप्पल उसके पास है, कार्ल के पास. और उसको वो 20 एप्पल्स को अरेंज करना चाहता है. वो कहाँ पर अरेंज, इन अलग अलग तरीके से हम क्या एप्पल्स को अरेंज कर सकते. ठीक है. तो ही अरेंज देम इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से इन हिज शॉप. पहला कैसा करेगा, 1 रो ऑफ 20 एप्पल. एक लाइन में सीधे 20 एप्पल्स रख सकता है. यानी आप टोटल एप्पल्स कितने हैं, 20. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. एक ही लाइन में लगा सकता है एक तो दुकान में. इसलिए एक लाइन में कितने हैं टोटल एप्पल्स, 20. सो 1 into 20. इन दिस वे ही कैन अरेंज. और अदरवाइज ही कैन मेक, दूसरा ऑप्शन है उसके पास, 2 rows of 10 एप्पल्स ईच. यानी एक लाइन में 10, दूसरे लाइन में 10. ऐसा भी अरेंज कर सकता हूं. यहाँ पर 10 है पहले रो में, सेकंड रो में भी 10 है. 10 plus 10 20. दैट्स वाई 2 into 10. 2 रोज है, 1 2. सो 2 into एक रो में कितने एप्पल्स है, 10. सो 2 into 10. इस ढंग से भी वो अरेंज कर सकता है, या फिर अलग ढंग से भी कर सकता है. इसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन दिस वन. नाउ he can arrange that 20 apple in this way also. 4 rows. Other option is that 4 rows. 1 2 3 4 4 rows, and in each rows 5 apple. 1 2 3 4 5. Okay. 4 rows of 5 apples each. That means 4 into 5 equal to 20. We want anywhere 20. He can arrange in, at first we have seen that in one line he can arrange that 1 into 20 equal to 20. After that he make 2 rows. Now he can make in this way also 4 rows, and he can place the apples there in this way. Or otherwise 5 rows, 1 2 3 4 5, and in each row at that time he can put that 4 apples. Okay. Now 1 2 3 4. Now 5 fours are how much, 20. Okay. Here 20. That means the numbers 1 2 1 comma 2 comma 4 comma 5 and 10 are what, and 10s are the factors, and 10 are called the factors of the number 20. क्योंकि 1 के टेबल में 20 आता है, 1 into 20 20. ठीक है. 2 के टेबल में भी 20 आता है, 2 10s are 20. 4 के टेबल में भी 20 आता है, 4 5s are 20. इन द सेम में 5 के टेबल में भी आता है, 5 4s are 20. और साथ में 10 के टेबल में भी 20 आता है, 10 2s are 20. आर कार्ड. इसलिए ये पूरे नंबर 1 2 1 2 4 5 and 10 are called the what, factors of the number 20. ध्यान में रखना है. यानी 20 कौन कौन से टेबल में आता है वो देखना है. 1 के टेबल में आया है, 2 के टेबल में 4 5 and 10 are called the factors of the which number, 20. When we multiply two number to get a product, each number is a factor of the product. For example 2 into 10. 2 10s are how much, 20. अब 2 के टेबल में 20 आता है, 2 10s are 20, और 10 के टेबल में भी 20 आता है, 10 2s are 20. इसलिए 2 और 10 क्या हो गए, फैक्टर्स किसके, 20 के. यानी प्रोडक्ट मतलब आंसर. इन द सेम वे 4 into 5. 4 5s are 20. So 4 is the factor of 20 as well as 5 is also the factor of 20. और ये प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, उसका आंसर 4 into 5 का. 4 5s are 20. समझ में आया. तो ये अगर ऐसे नंबर देख रहे हैं जैसे अभी 10, फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 10. यानी हमें 1 से लेके 10 तक टेबल देखना है. 1 के टेबल में 10 आता है, इसलिए 1 into 10 10. ये 1 is the factor of 10. 2 के टेबल में भी 10 आता है, 2 5s are 10. जो आता है वो लिखना है. 3 के टेबल में 10 आता है कि नहीं आता है,
तो छोड़ देने का। 3 नहीं है फैक्टर। 4 के टेबल में 10 आएगा क्या? नहीं है। 4 भी नहीं है। 5 के टेबल में 10 आता है क्या? देखो 5 2 जार 10 तो लिख सकते हैं। और 6 7 8 9 6 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 भी नहीं, 8 भी नहीं, 9 नहीं, 10 10 1 जार 10। तो ये हो गए फैक्टर। इसी ढंग से हमें फैक्टर फाइंड करना है। जैसे 10 कोई भी एक नंबर देके रहेगा उसके फैक्टर फाइंड करना है। तो अंडरस्टूड हाउ टू फाइंड दैट द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। So note down this one. To find the factor, finding out factor. Already I explained that 10, how to find the factor of 10. Are 1, 2 and 4 are the factors of 8. Now we have to find the factors of 8. Factors of which number given? 8. 8 के क्या ये 1, 2 और 4 फैक्टर हो सकते क्या? तो factors of 8 are. तो क्या करना है? 1 से लेकर 8 तक मल्टीप्लिकेशन टेबल देखना है। 1 से लेकर 8 तक। अभी उसको डिवाइड करो। 8 को पहले 1, कभी भी 1 से स्टार्ट करना है। 1 इंटू 8 8। रिमाइंडर किसी भी हालत में हमें 0 चाहिए, तो ये 1 है तो लिखने का यहाँ 1 आता ही है। कोई भी नंबर का फैक्टर फाइंड करते हुए समय। अभी क्या लेना है? नेक्स्ट 1 के बाद कौन सा? 2। 1 के बाद कौन सा? अभी 2 8 2 यानी 8 को 2 से डिवाइड करके देखो। 2 4 जार 8। फिर भी रिमाइंडर आया 0। 0 आया वही नंबर लिखना है तो नहीं, अगर 0 आया तो नंबर नहीं लिखने के। यहाँ 2 भी है। अब 3 के टेबल में आएंगे क्या? देखो 8 3 से डिवाइड करके देखो। 3 2 जार 6। रिमाइंडर 2 आ रहा, तो ये 3 नहीं है फैक्टर, उसको नहीं लिख सकते हम 3 को। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें रिमाइंडर क्या चाहिए यहाँ पर? 0। नेक्स्ट नंबर 3 को छोड़ देना है। फिर 4 8 को 4 से 4 के टेबल में देखना है 8 आता है क्या? 4 2 जार 8। 4 2 जार 8। रिमाइंडर 0 आया तो यहाँ लिख सकते हैं हम 4। 5 के टेबल में नहीं आएगा 8 नहीं आता, रिमाइंडर 3 आएगा। 6 भी नहीं, 7 ऑल्सो नॉट, 8 8 के टेबल में आएगा 8। यहाँ पर लेना है 8 और यहाँ 8 1 जार 8। रिमाइंडर 0 आया। तो ये 1 2 और 4 ये फैक्टर और 8 भी ये फैक्टर्स है। किसके है? 8 के। अब यहाँ 1 2 और 4 ही पूछा था तो हम 8 नहीं लिए तो भी चलेगा। यानी 1 2 और 4 फिर क्या हो गई ये? क्या 1 2 एंड 4 आर द फैक्टर्स ऑफ 8? यस यस 1 2 एंड 1 2 एंड व्हाट? 4। 1 2 एंड 4 आर the factors of which number? 8. Why? Because they divide exactly. रीजन है उसका क्यों ये 3 ही नंबर है। Has they divided exactly? Has it divides it exactly? क्योंकि ये डिवाइड हुआ है ये नंबर तीनों। ये कौन से 3 नंबर? 1 2 और 4। Has they divide it exactly? Has they divides it exactly? क्योंकि ये हमने 3 नहीं क्यों नहीं लिए? क्योंकि रिमाइंडर हमें 0 नहीं आया था, यानी इसका मतलब 3 के टेबल में नहीं आता है। शॉर्ट में 1 से लेकर हमें 8 तक टेबल जाना है। 1 के टेबल में 8 आता है, 2 के टेबल में भी 8 आता है इसलिए 2 लिखे। 3 के टेबल में 8 नहीं आता इसलिए हम नहीं लिखे 3 के यहाँ पर आंसर में। 4 के टेबल में आता है, 4 2 जार 8 इसलिए लिखे। 5 नहीं आता है, 6 नहीं आता है, 7 भी नहीं, 8 आता है, 8 लिख सकते हो अलग तो यस अंडरस्टूड दिस वन, हाउ टू फाइंड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। सो नोट डाउन दिस वन। नाउ एग्जांपल सेकंड लुक दैट इज 5 फैक्टर ऑफ 18। क्या 5 फैक्टर है क्या 18 का? यानी 18 के टेबल में 5 आता है या फिर 5 के टेबल में 18 आता है क्या? 5 के टेबल में 18 आ सकता है क्या? 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, 5 3 जार 15, 5 4 जार 20 नहीं आता है 18। तो नो, 5 is not a factor of 18 or otherwise divide 18 by, take that, divide 18 by what? 5. If we are, after dividing 18 by 5, if we are getting remainder 0, then that number is a factor of the dividend, otherwise not. So 5 3s are 15. So 5 3s are, which number getting nearest to 3? 8 minus 5, 3, 1 minus 1, 0. So when we divide 18 by 5, we get remainder 3. So 5 is not the factor of what? 18. When we divide, that sentence we have to write. One sentence, when we divide 18 by 5, we get remainder 3. If we are getting remainder 0, then we can write that 5 is a factor of 18 like that. When we divide, but here we got here remainder 3. When we divide 18 by 5, we get remainder 3. So 5 is not. So
5 is not a factor of which number? Factor of 80. Just you divide that one, you will get the answer. Okay, understood? So note down this. Well, example number 3, find out all the factors of 24. 24 यानी all मतलब पूरे 24 के फैक्टर्स फाइंड करना है. अब डायरेक्टली हम करेंगे. 1 के टेबल में आएगा कि 24, 1 into 24, 1 लेना ही पड़ता है कोई भी नंबर का फैक्टर फाइंड करते समय. 2, whenever is there in the ones place 0, 2, 4, 6, 8 like that number, then that number is divisible by 2. That is the divisibility test of 2. Or otherwise check that. Do now 24. We will get remainder at any case we want remainder 0. Now 2 ones are 2. Look that 2 minus 2 0. Now bring this 4 down. 2 twos are 4. So 0. That means 2 is the factor of 24 as well as 12 also. We will write afterward 12. So 2. Now next 3 के टेबल में आता है कि 24 टेबल देखना है 3 के टेबल में या फिर डिवाइड कर. एक तो टेबल देखो या फिर डिवाइड करो. 3 6 are 3 8 are 24, isn't it? 3 8 are 24 है. 3 भी है 8 भी है. 3 4 के टेबल में आता है कि देखो 24 4 6 are 24 यानी 6 भी है 8 भी है 12 भी है. अभी कौन सा है यहाँ पर 4. 5 टेबल गेटिंग दैट 24 नॉट पॉसिबल क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5 क्या बोलती है अगर वंस प्लेस में 0 या फिर 5 रहा तो वो नंबर डिविजिबल रहेगा 5 से, नहीं तो नहीं. अब 24 जैसे एग्जांपल चेक किया हमने 5 4 are 20. रिमाइंडर क्या आ रहा 4. रिमाइंडर 0 नहीं आया यहाँ पर इसलिए हम नहीं लिख सकते 5 को. समझ में आया? या फिर 5 के टेबल में 24 नहीं आता सीधा उसको छोड़ देना. 6 ये देखो 4 6 are 24, 6 4 are also 24. 6 आता है 6 के टेबल में आता है. 7 not getting I think that 7 table we are not getting 24 so don't write that one. 6 over. Now 7 also over. 8 ये देख 8 3 are 24. 8 आता है 8. 9 not getting. 10 also not. 11 not. 12 getting. Right there 12. 13 14 15 16. After 12 13 table not getting 24. 13 also 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20. Lastly we are getting only 24. So this 1 2 3 4 6 8 12 and 24. 1 2 3 4 6 8 12 और 24. ये है फैक्टर किसके 24 के. यानी ये 1 और 24 आना है. अभी तुमको तुम्हारा काम क्या है उनके बीच के नंबर फाइंड करना. ध्यान में रखना है 1 हर नंबर का फैक्टर लिखते समय वो आता है 1 के टेबल में और लास्ट वाला वो आएगा 24 के टेबल में आता है 24 1 और अभी उसके बीच के हमें फाइंड करना था तो इसे चेक करने का उसमें. तो दिस इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द फैक्टर्स ऑफ 24. और अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू डिवाइड तो टेबल तो भी मालूम होने चाहिए कम से कम. 2 10 are 20 वहां तक तो मालूम है आपको. फिर 2 into 11 से डिवाइड करके देख लें. कोई ना कोई टेबल में आता है जो नंबर. एक नहीं आ रहा मतलब दूसरा भी नहीं आएगा ऐसा नहीं है. दूसरा आ सकता है उसको डिवाइड करके देखते जाओगे. सो अंडरस्टूड. सो नोट डाउन दिस वन. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4. फाइंड आउट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 71. 71 के फैक्टर फाइंड करना है. फैक्टर्स ऑफ 71 आर 1. अभी ये 71 है ना ये प्राइम नंबर है. वो 2 के भी टेबल में नहीं आएगा 3 भी नहीं है. क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम 71 को 2 से डिवाइड करें जब भी मैंने बताया क्या है वंस प्लेस में अगर 0 2 4 6 या फिर 8 रहेंगे तो नंबर डिविजिबल रहेगा 2 से. अभी यहाँ पर 1 आए वंस प्लेस में 1 है मतलब ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ये 2 से डिविजिबल नहीं रहेगा. क्यों? 2 3 are 6. रिमाइंडर कुछ ना कुछ मिलेगा. नाउ 7 minus 6 1. ब्रिंग दिस 1 डाउन. 2 5 are 10. So remainder we are getting 1. So we want remainder there 0. So 2 is not the factor of 71. उसी ढंग से कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पर 3 भी नहीं 4 भी नहीं डायरेक्ट 71 के ही टेबल में आएगा. तो यहाँ 71 के कितने फैक्टर हो गए 1 और 72 इसलिए 71 इज ए प्राइम नंबर. वो पढ़ना है हमें आगे. प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर द ए नंबर विच हैज एग्जैक्टली ओनली 2 फैक्टर्स सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर. आगे है पढ़ेंगे हम बाद में. Only 1 and 71 are the factors of 71 because no other number can divide 71 exactly. Only if you want to write you can write or otherwise leave it. Up to here also correct. Only 1 and 71 are the factors of what? Are the factors of
17, दो ही फैक्टर मिले हमें 1 and 17 because no other number can divide, because no other number can divide, because no other number can divide 71 exactly, 71 exactly. हमने चेक करके भी देखेंगे, आप डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 से 71 तक जाना पड़ेगा, इसलिए ये 1 और 7 ध्यान में रखना है। 71 कौन सा नंबर है, इसके दो ही फैक्टर मिलते हैं 1 और 71, इसलिए 71 प्राइम नंबर है। सो अंडरस्टूड, नोट डाउन दिस। लेट अस प्रैक्टिस 5.1, राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। 20 के पूरे फैक्टर लिखना है। नाउ फैक्टर्स ऑफ 20 आर, यानी 1 के टेबल से लेके 20 तक। 1 के टेबल में आता है 20, 1 इंटू 20 20। फिर 2 के टेबल में भी आता है 2 10 20 2। 3 के टेबल में 20 नहीं आता, नहीं लिखने का। 4 के टेबल में आता है 4 5 20, so write 4। 5 table also we are getting 20, so you can write that 5। 6 not getting 20, 7 also not, 8 also not, 9 also not, 10 10 2s are 20, 10 11 12, 11 not, 12 also not, 13 14 15 16 17 18 19, lastly 20। So factors of 20 are 1 2 4 5 10 and 20, understood? So in this way we have to write the answer, okay? Second example, look that, write yes or no। 3 is a factor of 12। क्या 3 के टेबल में 12 आता है क्या? अगर आता है तो yes लिखना, नहीं तो नहीं। yes 3 4s are 12, या फिर 12 को साइड में रब करके देखना है तो रब करके देख सकते। 12 को किससे डिवाइड करोगे यहाँ पर, यानी डिविडेंड है और छोटा नंबर 3 डिवाइजर से। नाउ 3 4s are 12, 3 4s are what 12, so 12 minus 12 0। when we divide 12 by 3 we get remainder 0, that's why 3 is the factor of what 12। so here what we have to write yes। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फिर उस समय लिखना है नहीं, उस समय लिखना है हमें क्या, नो, अंडरस्टूड? इफ वी आर नॉट गेटिंग रिमाइंडर 0 somewhere 1 2 3 at that time, here you have to write what, no। just we have to look whether in 12 table, whether in 3 table we are getting 12, 3 4s are 12, that's why yes। example third, is 4 a factor of the following number, 36 given here। so what we have to, क्या 4 के टेबल में 36 आता है क्या? अगर आया है तो यस, यानी हाँ लिख सकते हैं यस 4 इज ए फैक्टर ऑफ द नंबर 36, और अदरवाइज डिवाइड दिस 36 बाय व्हाट 4। डिवाइड दिस 36 बाय विच नंबर 4। क्यों 4 से? क्योंकि यहाँ पूछा इज 4 इज ए फैक्टर ऑफ 36। सो 4 9s are, 4 के टेबल में आता है 4 9s are 36, रिमाइंडर इक्वल टू 0। when we divide 36 by 4 we get remainder 0। that sentence we have to write, when we divide 36 by 4 we get remainder 0। so 4 is a, so that's why we can write 4 is a factor of 36। if we are not getting remainder 0 then at that time we have to write that number is not a factor of the given number, understood? so note down this। fourth question like that only, same thing, is 5 a factor of the following number, now given here 75। so divide this 75 by which number, 5, and check that। why I already told that proper डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। अगर वंस प्लेस में, ये नंबर में वंस प्लेस में क्या है नंबर 5, वंस प्लेस में 0 या 5 रहा तो वो नंबर डिविजिबल रहेगा 5 से, या फिर उसको डिवाइड करो, चेक करो। 5 5 1s are 5, 7 के टेबल में इसके पास में 5 1s are 5, 7 minus 5 2। now bring this 5 down, now 5 5s are 25। so what we got remainder 0। when we divide 75 by 5 we get remainder 0। so 5 is a factor of what, 75। when we divide, one sentence we have to write that one, this, when we divide 75 by 5 we get remainder 0। so 5 is a, so 5 is a factor of what, 75 is a factor of 75, understood? now last question look at, find out all the factors of 36। 36 के पूरे फैक्टर फाइंड कर रहा है। factors of 36 are 1 के टेबल में आता है 1 into 36 36, 1
अब ये देखो यहाँ वंस प्लेस में 6 है, यानी 2 के टेबल में 6 आता है, इसलिए वो 2 भी रहेगा। या फिर आप अगर चाहिए तो फिर उसको रफ में भी कर सकते हैं। हियर डू रफ, इट इज बेटर टू डू रफ। नाउ डिवाइड दिस 36 बाय व्हाट? 36 बाय विच नंबर? 2 एट फर्स्ट 2। हाँ, 2 ones are 2, 3 minus 2 1। नाउ ब्रिंग दिस 6 डाउन। नाउ 2 8s are 16, 0। यानी 2 भी है और 18 भी है। 18 भी लिखना है हमें बाद में 2, लेकिन ऐसे जाना है, छोटे से बड़ा जाना है हमें। 2 3 टेबल। नाउ डिवाइड दिस 36 by 3। 36 by what? 3। 3 ones are 3। नाउ ब्रिंग दिस 6 डाउन। 3 2s are 6। 3 भी फैक्टर है, 12 भी है। 0 आया, रिमाइंडर लिखना है, लिख सकते हैं। 3 3 9s are 36 आता है ना? नहीं, 36 है ना? 3 3 12s are 36। ओके, 3 12s are 36। 3 के बाद 4, 4 के टेबल में 36 आता है क्या? 4 9s are 36 आता है, 4 भी लिख सकते थे। 36 को डिवाइड करो 4 से, 4 9s are 36, 0 आया तो 4। 5 के टेबल में 36 आता है क्या? नहीं आता, तो 5 नहीं लिख सकते क्योंकि रिमाइंडर नहीं आएगा। 0 36 को डिवाइड करो 5 से। 5 की प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं? अगर वंस प्लेस में 0 या 5 रहा तो ही डिविजिबल होता, नहीं तो नहीं। 5 7s are 35, इसके पास में 6 minus 5 1, 3 minus 3 0, तो रिमाइंडर 1 है, तो 5 नहीं लिख सकते। 5 नहीं है फैक्टर किसके? 36 के। 6 के टेबल में देखो, 6 के टेबल में आता है कि 36 टेबल में 6 6s are 36। यस, सो वी कैन राइट 6। 7 के टेबल में नहीं आएगा 36। 7 के टेबल में 7 5 35 आता, नहीं आता। 7 8 टेबल के 3 36, नॉट गेटिंग। 9 यस, 9 4s are 36 हियर ओनली। 9 10 not, 11 not, 12 3s are 36, we can write now 12 13 14 15 16 17 18, look that 18 2s are 36, 18 also getting, 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 not possible, 31 32 33 possible, look that 33 also not, 33 also what? Not getting here anywhere. 33 34 35 36, lastly 36. So the factors of 36 are 1 2 3 4 6 9 12 18 36, यानी इतने नंबर के टेबल में वो 36 आता है। बाकी नंबर में जैसा 5 7 8 वो नहीं आता, इसलिए वो नहीं लिखे हमने। जो टेबल में आते हैं, यानी 1 के टेबल से लेके हमें 36 के टेबल तक चेक करना है। So understood? So like that only we have to find the factors of the given number. So note down this one. Now homework, look that textbook page number 294. Let us practice 5.1. First, second, third, fourth and fifth. Already one example I explained. First, write all the factors of 20 करके दिया वैसा B, C, D, E and F you have to do. Second question also A I have done, remaining you have to do. Third also A done, B, C and D. In the same way fourth question also and fifth also. So try to complete these 5 examples. Okay.